You have recently started talking a lot about motherhood. What are some of the parenting style that people should have? So किस point पे ये thought है कि मेरे को इसके बारे में बात करनी चाहिए, awareness फैलानी? और टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग स्टाइल, एक स्टाइल जो मैं अभी रिसेंटली आई केम अक्रॉस इज जेंटल पेरेंटिंग, कि आप बच्चे को कुछ नहीं बोलोगे, वो जब भी कुछ कर रहा है अनलेस कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में खुद को डाला है. डू यू ऑल्सो बिलीव इन जेंटल पेरेंटिंग? Hi Suhani, welcome to Growthcast podcast and congratulations for becoming a new mom, but new mom not technically because your child is now 2 years old. So can you walk us through your journey from a creator to becoming a mother? Thank you, Shashank, for having me here. First of all, and congratulations to you too. Thank you. आप भी नए नए बाप बने हो. You want me to walk through my journey? Yes. How life changed? How life changed? मुझे ऑनेस्टली याद ही नहीं है कि पहले वाली सुहानी कैसी थी. माँ बनने के बाद आई थिंक वो बोलते हैं ना दैट यू फील कंप्लीट. येस, आई डू फील कंप्लीट एंड आई डोंट फील द नीड टू be that person who I was before because ये थोड़ा वैसे बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है. जिनके बच्चे नहीं है वो कहेंगे कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं, बट खाना पीना सोना कमाना इसके अलावा और कोई आपकी लाइफ में इवेंट नहीं होता था जिसके लिए आप लुक फॉरवर्ड करते थे. बट अभी आपके पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं. यू वेक अप एंड यू हैव सो मेनी टास्क्स टू डू. Life is eventful. It's just so beautiful and there is always something new. It's exciting. Got it. And अगर मैं पहले की लाइफ से कंपेयर करूँ तो तब क्या रूटीन रहता था और अभी क्या रूटीन है? Again, मैंने बोला ना, खाना पीना सोना काम पे जाना, बस ये बहुत लिमिटेड था. अभी इतना सब कुछ एक्साइटिंग और इवेंटफुल होता है कि पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ निकल जाता है. Basically that. And you have recently started talking a lot about motherhood. What are some of the parenting style that people should have? So किस point पे ये thought है कि मेरे को इसके बारे में बात करनी चाहिए, awareness फैलानी चाहिए? So basically मैं पहले मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2011-2012 में, वो मॉडलिंग और एक्टिंग से स्टार्ट हुई थी. Okay. तो कंटेंट क्रिएशन तब क्या था कुछ पता नहीं था. आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन इन 2019-2020. कोविड हिट हुआ, मॉडलिंग एक्टिंग हो नहीं रही थी. सो आई थॉट चलो यही ट्राई कर लेते हैं. ये नहीं पता था कि यहाँ पे मोनेटाइज इसको कैसे करना पड़ेगा, ये तब कोई आइडिया नहीं था. 2021 आई गॉट प्रेगनेंट. उससे पहले आई वॉज मेकिंग एंटरटेनिंग वीडियोज़, just random fashion entertaining videos. But when I got pregnant I thought यार मेरे को अपनी जर्नी यहाँ पे ना शोकेस करनी है. तो वो मैंने बहुत ही फन वे में उसको शुरू किया ऑन इंस्टाग्राम. But when brands wanted to collaborate with me and I thought hey this has a lot of money. तो तब जाके मुझे लगा कि this is something that that can be taken up as a profession. Initially it was all fun and games, but then it became a profession for me. Got it. And where do you get your content idea from? Every day, yeah, every day whatever the child does. अगर कोई भी ऐसे कुछ मुझे बहुत ही quirkiness दिखती है या लगता है अरे यार ये तो मुझे लगता है सब करते होंगे, सारे बच्चे करते होंगे, तो मैं उसको रील में कन्वर्ट कर देती हूँ. And a lot of your reels are very relatable. So do you also keep on getting these messages कि ये काफ़ी relatable हो रहा है? I think that's what I live for and that is why I love what I do. Because अगर मेरी audience मुझसे connect नहीं करेगी then I don't think, because as I said, क्योंकि मैंने start ही इसीलिए किया था क्योंकि मुझे अपनी journey बहुत ही fun way में, exciting way में डालनी थी on Instagram. I wanted it to be relatable and लोग मेरे से connect करें. That's exactly what I wanted and I'm so glad that I have been able to revive that. Just keep that going for, it's been 3 years and अब तक वो चल रहा है. So fingers crossed, thank you God, touch wood. But yeah. So you keep also traveling a lot with Seher. Yeah. So what are some of the travel hacks that you'd like to share with new moms? ये बड़ा tricky question है because मेरे को ट्रैवल करने में दिक्कत होती है सहर के साथ because सहर इज़ अ वेरी वेरी क्लिंगी चाइल्ड. सो वन ट्रैवल हैक दैट आई वुड लाइक टू probably share is just get another
couple parent with you on a trip so that उनके भी बच्चे हो, आपके भी बच्चे हो, दोनों साथ में बैठ के खेलते रहे और उनकी कंपनी हो. क्योंकि पहले क्या होता था, हमारी फैमिलीज़ में जॉइंट फैमिली, सब साथ में ट्रैवल करते थे, right. इतने सारे बच्चे होते थे, सब एक दूसरे के साथ मिलते थे, खेलते थे, टाइम पास हो जाता था. अब क्या है, सबका एक एक बच्चा या दो दो बच्चे हैं. Right. अब उनको कंपनी कहाँ से मिलेगी, तो इसलिए ऑलवेज फाइंड समबडी जिसके खुद बच्चे हो, ताकि वो आपस में खेलते रहे और माँ बाप भी अपना चिल कर तो ले. बेसिकली अपने दुखों को डिवाइड कर दो, जो दो लोग हैं उनके बीच हो जाएगा, राइट. डू यू आल्सो बिलीव इन देसी नुस्खास, एंड इफ यस देन व्हाट आर सम ऑफ द नुस्खास दैट यू हैव ट्राइड? तो मैं ना बहुत ही कैलकुलेट करती हूँ कुछ भी करने से पहले. जैसे दादी नानी बोलते हैं कि बच्चे को लंगोट में रखो, नहीं रखा मैंने डायपर ही पहनाया. पहले क्या होता था, डायपर्स होते नहीं थे, तो इसलिए वो बोलते थे लंगोट में रखो. अब लंगोट में रखोगे तो बच्चा बार बार वेट होता रहेगा, Right. और उसको रैशेज हो जाएंगे. तो ये नुस्खा काम नहीं करता. प्लीज़ डोंट डू इट, स्विच टू अ डायपर. बट देर आर सो मैनी देसी नुस्खास जो बड़े लोग देते हैं, विच वर्क लाइक वंडर्स. आई टेल यू वन ऑफ इट, जो कि मैं हमेशा करती हूँ और मैजिक की तरह काम करता है. सो सरसों को बॉईल करना है और उसके अंदर गार्लिक डालना है. ओके. उसको ऑफ कर दो जब गार्लिक बर्न हो जाए, और उसके अंदर अजवाइन डाल दो थोड़ी सी. लेट इट कूल डाउन, उसको छानो. वो जो ऑयल बनेगा वो आप तब अपने बच्चे की मालिश करोगे जब उसको कोल्ड और कफ होएगा. Okay. ऑन द चेस्ट, ऑन द फीट, और उसको सॉक्स पहना के सुला दो. नेक्स्ट डे अगर कम नहीं हुआ ना कोल्ड कफ, तो मेरा नाम बदल देना. So this is something that you've seen working? Yeah. I am all about desi nuskas, and I mean, whoever has seen my profile knows that I share so many desi nuskas on my profile too. And talking about childbirth, do you feel that postpartum depression is something which is in for real? It is. मैंने सुना था इसके बारे में, लेकिन ये नहीं पता था कि ये खुद के साथ हो जाएगा. बहुत ही टची टॉपिक है, बट इट टुक मी अ वाइल टू कम आउट ऑफ इट. पहले मुझे लगा दैट जब ये हुआ, द हॉर्मोन्स वर फ्लक्चुएटिंग सो मच, आई थॉट दैट दिस विल पास, अपने आप ही हो जाएगा. बट इट डिडंट. When I spoke to, so I'm an extrovert. I like talking to people. Right. I spoke to my brothers about it. Of course, they didn't know that what is exactly this, but they said, Suhani, seek help. थेरेपिस्ट के पास जाओ तुम. Why are you stopping yourself? अब टैबू तो है ना कि थेरेपिस्ट के पास कोई क्यों जाएगा. तो मुझे लगा नहीं, ठीक हो जाएगा. सो फॉर द फर्स्ट 3-4 months आई सेड नहीं ठीक है, ऐसे ठीक कर लेंगे. आई स्टार्टेड टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, वापस वर्क पे जाना. सो आई स्टार्टेड टू फील बेटर. बट इट केम बैक आफ्टर 1.5 years, and then it came in a much more worse phase. So I started getting anxiety attacks. So that's when I thought that things are not right and I need professional help. So thanks to everybody around, I got so much support from my family. I went to a therapist, I went to a psychiatrist, got medication, and now I feel that I'm a little better. But I think this journey is long, and depression is not something जो ऐसे ना एक दवाई खाई और ओवरनाइट क्योर हो गया, ऐसा नहीं है. इट टेक्स टाइम. बट आई एम जस्ट ग्लैड दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट नाउ. पहले भी आई एम श्योर लोगों को होता होगा, पर उसको अवेयरनेस नहीं थी उतनी. राइट. लोगों को अवेयरनेस नहीं थी. लोग रात को नींद की गोली खा के सो जाते थे. वो क्या है, उनको घबराहट हो रही है ना, नींद नहीं आ रही, उसका मतलब क्या है? आपको एंजाइटी ही है, आपके थॉट्स आ रहे हैं. राइट. बट पहले के लोग इतना नहीं समझ पाते थे जितना हमारी जनरेशन आई थिंक इसके बारे में बात करती है. Again, like there were so many things before, during pregnancy that we talk about बेबी का जेंडर क्या होएगा. राइट. कोई ये नहीं बात करता कि आपके ब्रेस्ट फीडिंग के चैलेंजेस क्या होंगे. कोई ये बात नहीं करता कि आपके पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, नहीं है, क्या होगा, एक माँ को और ज़रूरत क्या हो सकती है. रोल ऑफ फादर इन ब्रिंगिंग चाइल्ड अप. Role of a father, would he be taking leaves from office or not? There are not too many offices that give leaves to the father as well. It's hardly 1 week in most of the offices, जबकि उतने में काम नहीं होता आपका. क्या काम होएगा? How can a father spend only 1 week with the child?
जो शुरुआत की एज होती है when you need so much support, the mother needs so much support. राइट आप उसमें एक हफ्ते में कैसे कर सकते हो? बिकॉज जैसे आपने भी बोला योर इन लॉज एंड योर पेरेंट्स डोंट आर नॉट वेयर यू आर राइट नाउ, राइट? वो नहीं रहते दिल्ली में, तो फिर कैसे सपोर्ट, कौन करेगा सपोर्ट? हाँ, then you two are there for each other. या सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में बात करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रादर दैन जो हम ऊपरी टॉपिक्स के बारे में जो हम बात करते हैं कि जेंडर क्या होएगा, है ना, नर्सरी बना ली या नहीं बना ली, श्योर वो भी ज़रूरी, हाँ कपड़े खरीदे कि नहीं खरीदे, श्योर ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा और भी कई सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट। And what are 3 expectations that women generally have with their partner when it comes to raising child? What are 3 things that men should focus on if you're becoming a new father? मुझे लगता है सबसे पहले तो अप्रिसिएशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर मैं मानती हूँ आप पूरा घर संभालते हो, सारे फाइनेंसेस टेक केयर करते हो, लेकिन अगर आप घर आके ये बोल दो कि यू नो यू हैव डन सच अ फिनोमिनल जॉब विद द बेबी एंड यू लुक ब्यूटिफुल, दैट अप्रिसिएशन ऑफ हाउ यू मैनेज द हाउस, हाउ यू आर रेजिंग द बेबी, आई थिंक दैट really puts a smile on a mother's face, and also I think it strengthens your relationship. Right. Now in western culture, number 2, equal parenting बहुत ही ज़्यादा common है यहाँ पे, प्रमोट भी की जाती है, प्रमोट भी की जाती है, यहाँ पे इतनी नहीं है। If you know somebody is living in a joint family, तो elderly लोग हमेशा यही बोलेंगे, अरे माँ को ही करना होता है सब कुछ, हाँ. है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे भी इंडियन कल्चर में भी थोड़ा सा इक्वल पेरेंटिंग का अगर कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग स्टाइल, एक स्टाइल जो मैं अभी रिसेंटली आई केम अक्रॉस इज जेंटल पेरेंटिंग, कि आप बच्चे को कुछ नहीं बोलोगे, वो जब भी कुछ कर रहा है एंटी अनलेस की बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में खुद को डाला है। डू यू ऑल्सो बिलीव इन जेंटल पेरेंटिंग? सी आई डू बिलीव इन जेंटल पेरेंटिंग। जेंटल पेरेंटिंग एक हद तक मुझे सही लगती है, क्योंकि हाथ उठाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, राइट। वो अभी तक मैंने नहीं किया है, बट कभी कभी इतना गुस्सा आता कि मन तो करता है कि लगा दो एक। हाँ, बट अभी तक वो नहीं किया है, बिकॉज यू नो व्हेन यू रीड अबाउट जेंटल पेरेंटिंग, ऑफ कोर्स हमारे टाइम में तो हम बहुत ही पिटते रहते थे, लेकिन चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में पढ़ते पढ़ते अब ये हो गया है कि थोड़ा सा तो करना है, जेंटल रहना है। लेकिन ये नहीं है कि अगर वो कुछ भी गलत कर रहे हैं तो हम उनको टोकेंगे नहीं। अगर वो दीवार पे जाके स्क्रिबल कर रहे हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगी ओ सो क्यूट, नहीं, हाँ, इससे तो कुछ होगा नहीं, हाँ, तो ठीक है करने दो। हाँ, नहीं, मैं उनको मना करूँगी कि लेट्स नॉट स्क्रिबल ऑन द वॉल, यू कैन स्क्रिबल ऑन द पेपर, राइट। सो ऑफ कोर्स जेंटल वे में आप उनको डिस्ट्रैक्ट करके कहीं और ला सकते हो, बट ये नहीं है कि यू विल नॉट से नो टू एनीथिंग, ऐसा नहीं है। Got it. And talking about parenting only, do you also believe कि थोड़ा स्क्रीन टाइम देना चाहिए बच्चों को या completely avoid it? मैंने सोचा तो था कि मैं कम्प्लीटली अवॉइड करूँगी, बट ऐसा हो नहीं पाया। पर मैं इस मामले में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ। मैंने बहुत शुरू से ही ये किया हुआ है दैट टिल आई थिंक 10 months देयर वर नो स्क्रीन्स गिवन टू सहर। या फ़ोन में अभी भी नहीं देती हूँ सहर को, बट टीवी यस शी वॉचेस। 2 टाइम उसके फिक्स्ड हैं, मॉर्निंग अराउंड नून 20 minutes, जब उसका नहाने के बाद मालिश होता है, क्लोथ्स चेंज होते हैं, 20 minutes एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 20 minutes बिफोर बेड टाइम अगेन जब क्लोथ्स चेंज होते हैं, सो इट्स फिक्स्ड। अदर देन दैट आई टेल हर टुमारो मॉर्निंग, सो शी सेज मामा टुमारो, सो इट्स फिक्स्ड, शी नोज कि इतने बजे से इतने बजे ही मिलेगा मुझे स्क्रीन टाइम। And that is no phone screen, ये TV screen? Not at all. Got it. And you also recently sent her to school, so schooling की generally people again have 2 school of thoughts कि या तो बहुत जल्दी भेज देते हैं या रुक के 3.5 में। What is your take on that? तो मैंने ना ये 2 साल में समझा है दैट पेरेंटिंग इज़ पर्सनल, एंड इसके अंदर कोई राइट या रॉन्ग है ही नहीं, जिसको जो ठीक लगता है वो करेगा, एंड आई थिंक इट्स फेयर। अगर किसी को लगता है दैट अब वेस्टर्न कल्चर में बाहर लोग डे केयर भेजते हैं, आप उनको रॉन्ग बोल दोगे? नहीं बोलोगे। अगर किसी के पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट है तो वो नहीं भेजेगा बच्चे को स्कूल, राइट। अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो वो क्या करेंगे? उनको काम पे तो जाना है ना। 6 महीने की लीव मिल गई, उसके बाद क्या? 1 साल की लीव मिल गई, उसके बाद क्या? श्योर अभी आजकल वर्क फ्रॉम होम भी होने लग गया है, लेकिन
आपको अपना भी तो काम और फाइनेंसेस देखने हैं, राइट? सो अगर आपको स्कूल भेजना पड़ रहा है तो आई डोंट थिंक देर इज़ एनी थिंग रॉन्ग इन इट. दे हैव देयर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज आर देयर. वहाँ पे आपको वो एक्टिविटीज़ कराने को मिल रही हैं जो आप घर पे नहीं करा सकते. यहाँ पे घर पे आपको दादा दादी फिर शायद स्क्रीन दिखा दे कि अरे आ जाओ बेटा थोड़ा सा स्क्रीन देख देते हैं. वहाँ पे स्क्रीन होएगी ही नहीं. सो अगर 3 घंटे के लिए बच्चा स्कूल चले जाएगा, सो आई डोंट सी एनी रॉन्ग इन इट. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वाई आई सेंट हर टू स्कूल, बिकॉज माई चाइल्ड इज़ अ क्लिंगी चाइल्ड. शी विल hold my jeans and pajamas when I'm in the kitchen, when I'm in the room, and I'm working from my home always. Right. So वो मुझे नहीं काम करने देती है. So if I send her to the school for 3 hours where she's chilling with her friends, with the teacher, she's doing activities, I don't see any wrong in it. एंड हाउ एज अ कपल यू बोथ टेक आउट टाइम, बिकॉज मेरे को भी पर्सनली चैलेंज लगता है कि अब सारी चीज़ आपके बच्चे के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, तो आप दोनों का मी टाइम बहुत कम होता जाता है. हाउ यू वर्क ऑन दैट? बहुत मुश्किल है ये. ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है. आई थिंक मेरे एक एनजाइटी का रीज़न यही था बिकॉज वी weren't फाइंडिंग एनी टाइम एज अ कपल टुगेदर. इट वॉज जस्ट अबाउट द फैमिली, इट वॉज जस्ट अबाउट द चाइल्ड, but nothing related to us. That is when we spoke to our parents and when we decided that we should take a vacation where the child is here with dada dadi nana nani and we will go on a 5-day trip to Kashmir. That's what we did, and I think this is what we have planned for this year also, that we will take out at least 2 days so that we can have that time as a couple. Sure, you can go on a movie date, you can go on lunches and dinners, but it's just very. हाँ, प्लस एट बैक ऑफ योर माइंड इट कीप्स ऑन प्लेइंग कि बच्चा घर पे है. तो जब हम कश्मीर में थे तभी भी यही हो रहा था. मैं पूरा टाइम कैमरा पे थी, इज शी ओके और इज शी नॉट, बट स्टिल आई गॉट टू ट्रैवल विद माई हस्बैंड, जो हम एकदम बिल्कुल पहले जैसे करते थे, एकदम बिंदास फ्री माइंड की तरह से. एंड हाउ यू मैनेज द गिल्ट पार्ट ऑफ इट कि यार छोड़ के चले गए वो वहाँ पे, कि इट विल हैपन नो मैटर व्हाट. एंड ऑनेस्टली मुझे कभी भी गिल्टी फील नहीं हुआ. दिस इज़ समथिंग लाइक मुझे कभी भी मॉम गिल्ट फील नहीं हुआ. आई फियर ऑफ मिसिंग आउट है, फोमो होता है कि यार मैं क्यों नहीं हूँ उसके साथ, बट गिल्टी फील नहीं होता. आई हैव गॉट हर इन टू दिस वर्ल्ड. शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी to leave her. I do need support. I know I need help from my parents, I need help from my husband, I know I have to work. So वो कभी guilty नहीं है. It's just a very natural process. मुझे guilty feel नहीं होता. And I think initially you also talked about कि कई चीज़ों के बारे में लोग पहले से बात करते हैं कि तुमने क्या प्रिपरेशन कर ली, क्या कर ली, कौन सी ऐसी 2 या 3 चीज़ें हैं दैट women should be ready अगर आपको पता है कि आप न्यू मॉम बनने वाले हो, जिसके बारे में कोई बताता तो नहीं पर ऑल ऑफ सडन आपको आके हिट करती है. सबसे इम्पॉर्टेंट तो ब्रेस्ट फीडिंग है. Breastfeeding, I don't think it was talked about at all. Right. Because the moment you deliver, the child is placed on your chest and you are supposed to breastfeed the child. ये मुझे किसी ने नहीं बताया था. मुझे पता था, हमने मूवीज़ में क्या देखा है, पुश 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 आउट, द चाइल्ड इज हियर, या ऑल इज वेल, स्टोरी खत्म, न्यू बिगिनिंग, है ना, दी एंड आ जाता है लिखा हुआ. ये तो किसी ने बताया नहीं कि ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंजेस क्या होंगे. सो मच सो लाइक मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था दैट आई वॉज प्रोड्यूसिंग मिल्क. You're a guy, but I'm still talking to you. There are too many people here. But I was producing milk, but my child wasn't latching on to me. Right. This was another story. I was like, nobody told me that this could be a challenge. Even we got to know कि they are lactation consultants जो आपको इसमें help करते हैं. मैं बिल्कुल हैरान थी कि ये है क्या चीज़. एंड सबने बोला था माँ का दूध इज सो इम्पॉर्टेंट, तो मुझे लगा था ये तो बहुत ही नेचुरली हो जाएगा. Right. इसके चैलेंज होंगे ये तो किसी ने बताया ही नहीं था. तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. सब बोलते हैं कि लमास क्लास में जाओ, एंटीनेटल क्लासेस में जाओ, उसमें आपको होना चाहिए वजाइनल होएगा, सिजेरियन होएगा. अरे जो जिस भी तरीके से होएगा बच्चा बाहर आ जाएगा. ही शुड बी हेल्दी, द मदर शुड बी हेल्दी. जस्ट टॉक अबाउट व्हाट विल हैपन आफ्टरवर्ड्स. हार्मोनल चेंजेस, ओ माय गॉड, लाइक जिनको नहीं पता चलता, गाइज यू आर ब्लेस्ड. बट जिनको पता चलता है उनकी तो हालत ख़राब हो जाती है. बट अगेन लाइक एज आई सेड, इफ़ यू हैव अ केयरिंग partner,
a caring family support, then I think half the battle is won. अगर आप रो रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि मुझसे नहीं हो रहा, because there will be bouts of those Emotional हाँ outburst. हाँ इमोशनल आउटबर्ट्स होंगे, बोलोगे कि मैं नहीं कर सकती, मैंने तो ये बहुत बारी बोला था कि मुझसे नहीं हो रहा ये. तो अगर आपको कोई पैसिफाई करने के लिए आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, पेरेंट्स, इन लॉज, पार्टनर, सिस्टर इन लॉ, whatever, sister, then I think you'll be in a good space, you'll come out of it. And work-wise, how have things changed? मतलब पहले what kind of work you were looking forward to do? अभी उसका भी direction थोड़ा सा change हुआ है क्या? Completely change हो गया. So I used to do a lot of e-commerce catalogs, TVCs, digital ads. Okay. I used to travel to South India a lot for work, to do TVCs and their catalogs for sarees, textile वहाँ पे बहुत ज़्यादा है. Right. तो completely stopped because 2 days are in traveling. अगर मैं रात को जाऊँ, अगली morning पूरे दिन मेरा shoot है, then next day I have to come back. So 3 days are gone. And I don't think I can do that so often, leaving my daughter behind, because I like being at home, with her, when she's in a routine, playing with her, indulging in activities. That's what I like. I like this, this journey of mine. And initially there was no content creation, but now it is just about content creation. So, whatever relatable thing I find, I put that in a reel, and it's all for the audience. Right. I recently met with Sudha Murthy ma'am. She also told कि 10 साल तक का तो स्ट्रगल है ही आपका, जब तक बच्चा खुद पे अपने आप से कई चीज़ें परफॉर्म नहीं करने लगता, तो 10 साल तो आपको सोच के चलना है. आई थिंक इफ़ वी टॉक अबाउट 10 years, सब तो आपका पूरा करियर ही पिवट हो जाएगा. यू हैव टू डू समथिंग न्यू. पर देखो, अभी आपने बोला 10 साल का स्ट्रगल, मैं इसको स्ट्रगल नहीं मानती. मुझे ये अच्छा लगता है करना, ना मुझे गिल्ट है, ना मुझे स्ट्रगल लगता है. दिस इज़ वॉट आई हैव चोजन. आई हैव चोजन टू बी अ मॉम एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट. इट्स जस्ट दैट वट एवर जो एक मेरा वो फेज़ आता है ना, वो एनजाइटी का, बस वो मुझे कभी कभी तंग करता है. बाकी आई लव बीइंग अ मॉम. And what about making sure कि child is getting to right school? Are there certain things that you looked at while choosing the school for her? Didn't get your question, वापस पूछो. If you have to choose a school, what are certain things that you looked at कि ये school final करने के पहले यहाँ 2-3 चीज़ें होनी चाहिए? Okay. So before we finalized a school for her, of course, fees plays a major role, because बहुत ही ज़्यादा fluctuations है fees में. Somebody is asking 9,000 rupees per month, and there are schools which are asking 25,000 for a preschool, Right. which is mad. 25,000 per month for a preschool is really mad. Again, but it depends on, person to person. If somebody can afford it, somebody, is willing to go through, if somebody wants to go, wants to select that procedure for their child. Right. कि मुझे Montessori ही करना है, अब उसका थोड़ा फीस ज़्यादा होता है. ठीक है, fair enough. Not judging anybody, but it's really high. So fees was one. Distance. In a preschool, I think इतना दूर बच्चे को भेजना doesn't make sense to me. So distance, fees, staff, CCTV cameras, if they have uniforms or not. There are too many things that I honestly researched on. But yeah, fees, distance, uniform, CCTV cameras, Uniform is, I think, meals. one thing that I would also like to over index, कि उससे थोड़ी यूनिफॉर्मिटी रहती है कंपेयर टू आप कह दो बच्चे कुछ भी पहन के आ जाए. देन अगेन दे कैन बी सोशल डिसऑर्डर. कोई कुछ हाई क्लास पहन के आ रहा है, कोई नॉर्मल, और वो फिर वो दिक्कत क्रिएट करता है. पर इसके बारे में ना, आई वॉज एग्जैक्टली लाइक यू बिफोर आई वॉज चूजिंग अ स्कूल. बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वी कैन टॉक दिस आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो, बिकॉज इट्स नॉट टू नहीं, चलेगा. ओके, ठीक है. सो बेसिकली वन ऑफ माई फ्रेंड्स सन वॉज गोइंग टू अ स्कूल, और वहाँ पे एक यूनिफॉर्म थी जो कि सब पहनते थे. अब एक दिन उसको नहीं पहननी थी यूनिफॉर्म. So he said, Mama, I don't want to wear a uniform. नहीं पहन के गया. So the school was so strict that, they asked the child and mom that why isn't the child wearing this uniform 4 to 5 times. And the child became rebellious to that uniform. कि मैं नहीं पहनूंगा. And he started hating the color red because the uniform was red. So I think now, 6 महीने पहले मैं भी यही सोचती थी कि यूनिफॉर्म कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट अब मैं ऐसा नहीं सोचती, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली क्यूरियस चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 5, एंड लेट देम डू व्हाट दे वांट टू. ये पेरेंट्स के ऊपर है कि वो उसको गैप की टी शर्ट पहनाना चाहते हैं, या लुई विटॉन की, या पोलो की, Right. या एक
कोई भी लोकल मार्केट की या बेबी हक की या व्हाटएवर की, राइट? ये पेरेंट्स के ऊपर है, बच्चा नहीं जा रहा शॉपिंग करने। बट अगर वो हर रोज़ सुबह ड्रॉ खोल के बोलेगा कि मम्मा आई वांट टू वेयर दिस, हाउ क्यूट इज़ दैट? हाँ, मे बी सीनियर क्लासेस में यू कैन वर्क ऑन यूनिफॉर्म। There is an entire life to wear a uniform. स्कूल में यूनिफॉर्म पहनोगे, उसके बाद जब ऑफिस जाओगे वहाँ की भी एक यूनिफॉर्म होती है, शर्ट, Dress code, ट्राउजर्स, टाई. So you have to be in a disciplined form any which ways for the rest of your life. Let them explore. Let them be what they want to be. छोड़ दो उनको खुला. राइट थॉट प्रोसेस में भी 6 महीने बाद मेरे को भी आइडिया लगेगा। मेरा भी अभी चेंज हुआ है. पहले मैं भी यही थी कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए छोटे स्कूलों में भी, बट नाउ आई एम लाइक इट्स ओके. Okay, one question, one more. That would I'd like to ask you from a content creator point of view Yeah. कि creation में कैसे content pivot कर रहा है? मतलब initially I think pregnancy days पे you would be getting lot of ideas around कि pregnancy बना सकते हैं, maybe hospitalization के. अब वो कैसे evolve कर रहा है with child growing up? वो उसके साथ ही जा रहा है और are you sticking to the original plan जो initially था कि maybe talk about pregnancy days and everything? सो देर वर अ कपल ऑफ थिंग्स जो मैंने मिस कर दी थी जब प्रेग्नेंट थी. वो कभी कभी यू नो आई हैव रिटन इट डाउन, सो समटाइम्स यू नो आई मेक वीडियोज ऑन दैट टू. बट मेजरली वट एवर आई एम पोस्टिंग दीज डेज इज जस्ट अबाउट द जर्नी दैट आई एम यू नो ऑन विद माई डॉटर. So I think it's majorly day-to-day story. Right. And that is what you know I would like to keep. You know, अभी आजकल मैं बहुत सारे स्कूल की रील्स बना रही हूँ कि what was my intent behind sending you know Seher to school, what were the parameters that were you know thought of before sending her to school, कौन सा स्कूल चूज़ किया. तो इसके ऊपर बहुत सारी बन रही है. तो अगेन लाइक जो डे टू डे में हो रहा होता है ना उसी के ऊपर ही Thinking मैं of long form content also 8-9 minutes vlogs or not अभी? मन तो बहुत करता है, बट अगेन लाइक इट्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई थिंक आई डोंट नो लाइक आई एम एम्बिशियस बट आई एम नॉट सो एम्बिशियस कि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल एकदम मिक्स कर दो. हाँ तो मैं श्योर नहीं हो पाती कि मुझे करना है या नहीं करना. हाँ, बिकॉज आई सी कि ये ऐसी कैटेगरी जिसमें नॉट मेनी पीपल आर टॉकिंग, मे बी यू आर देयर एंड 1 or 2 मोर पीपल आर देयर हु आर टॉकिंग अबाउट इट. Yeah. नहीं तो जनरली पीपल आर ओवर इंडेक्सिंग ऑन आइदर इंफोटेनमेंट या प्योर एंटरटेनमेंट, Yeah. व्हिच इज मोर शेयरेबल आई गेस. या डू यू ऑल्सो फाइंड सम कैटेगरीज दैट यू फाइंड वेरी एक्साइटिंग कि यार इसमें जाके मेरे को भी कुछ इस तरह का आगे क्रिएट करना है, गिवन एन चांस और अपॉर्चुनिटी? अगेन मुझे शहर के साथ ही जैसे आपने बोला व्लॉग्स बनाने का मेरा बहुत मन करता है. गेट रेडी विद मी बिफोर सेंडिंग हर टू स्कूल. मेरा मन करता है दैट you know how I'm getting her ready, what I'm preparing in her lunch box, you know all those things I should probably put it in a vlog, but it's just so much work to first shoot it and then edit it that I'm like let it be, let's be you know in the moment. तैयार करती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, अपना चिल करती हूँ, तो उसी में रह जाता है वो. बट आई रियली you know would want someday if you know if I get the right push and that motivation to do this because ये बहुत चलता है. राइट. चलते पे पूछते हुए आई थिंक लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव एज समबडी हु सीन द इंडस्ट्री वेरी क्लोज, डू यू फील कि अब इन्फ्लुएंसर आर ऑल्सो कमिंग एट सेम पेज विद अ बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस, मतलब सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट एंड मे बी अर्निंग पोटेंशियल इज देयर इफ यू आर अ फुल टाइम इन्फ्लुएंसर एंड इफ यू आर अ बॉलीवुड एक्टर? Opportunities have definitely increased. That is there because you know see how mostly sane Prajakta Kolai is there. She got a Netflix series Mismatched, and then she got to work with Varun Dhawan and Karan Johar in Jug Jug Jio. So I think it's definitely the market has grown. The visibility is great. अभी आजकल वो गाना चल रहा है विकी कौशल का तौबा तौबा. राइट. So Kusha Kapila and Shishti Patch, both of them did a video together and Vicky Kaushal has reshared it, has commented on it. आते हुए अभी मैं देख रही थी अगेन लाइक मोस्टली सेन हैज़ डन अ तौबा तौबा, विकी कौशल हैज़ commented on it. So you know everybody knows everybody. Right. पहले influencers का ये नहीं होता था that you know they were seen. Now they are seen and heard. Whatever they are saying is making sense to everybody. They are also getting that celebrity status. पहले Absolutely. influencer status अलग होता था, celebrity अलग की आप देख के वाव नहीं होते थे सामने किसी को. Maybe you will click a picture, Yeah. but I think that thing is also changing. Absolutely, and so many influencers are shifting their base to Bombay now because that is where the market is. And with the increase in web series and you know these shows that are being made, everybody wants to try their luck.
आफ्टर ऑल एक्टर तो सबको ही बनना होता है ना. तो दिल्ली में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती क्या कंपेयर टू से बॉम्बे? द मार्केट इज़ देयर, होती हैं डेफिनेटली. Okay. यहाँ पे भी बनते हैं, बट जो एक हब होता है ना, फिल्म सिटी है यहाँ पर नोएडा में, हाँ राइट राइट. बट जो वहाँ का है वो यहाँ पे नहीं है. जो मार्केट वहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं है यार. एवरीबडी स्टेज देयर. Right. And what are your plans for next 6 months when I talk about content creation? What are the areas that you will focus on? ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा. लेट्स टेक वन डे एट अ टाइम. आई डोंट नो यू नो हाउ इट इज़ गोइंग टू पैन आउट. आई जस्ट नो दैट यू नो माई डॉटर school is starting from tomorrow. So that is what I'm really excited about. And as I said, you know, life is extremely exciting and eventful. हर रोज़ एक नया टास्क आता है मेरे पास कि अब ये करना है, तो मैं उसी में तैयार हो जाती हूँ. अगले 6 महीने का मुझे कुछ नहीं पता है. हाँ आई थिंक वो बच्चे जो छोटे हैं वो अपने आप ही कंटेंट आइडिया देते रहते हैं जो हरकत करते हैं. बिल्कुल. इट्स जस्ट सो क्यूट एंड प्योर एंड इनोसेंट दैट मेरा मन करता है कि जस्ट लिव इन द मोमेंट. Thank you so much, Suhani, for taking our time. It was really was- nice talking to you, and Thank you. glad that you shared all of these experiences which very few people talk about. Thank you so much. It was a pleasure being here.